so much for joining us. We are doing this live today to discuss the most recent judgment of the Supreme Court regarding the Hindu Succession Act. And what we want to do today is discuss how far we have come when it comes to women's right to property and how long do we have to go in the future to actually achieve the goal of equal rights to property for women. आज हम दोनों हिंदी एंड इंग्लिश में बात करेंगे ताकि ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे साथ बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी राइट्स पर काम करते हैं। वी हैव शिप्रा दियो, शी इज द डायरेक्टर फॉर विमेन लैंड राइट्स in India at Landisa. We have Devendra Damle, who is a researcher at NIPFC, and he has recently published a paper on Hindu Succession Act and what remains to be done when it comes to discrimination of women, when it comes to devolution of property. And we have Manisha Gupte, who is the founder and co-convener of Mahila Savanbeen Utkarsh Mandal, Masoom in Pune. मासूम जो है वो पुणे में एंड आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स पे काफी काम करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स पर, and they make sure that women get the right to property and property is registered in their name. So we have a very interesting panel, and I think to start with, Devendra, it will be great if you can set some context as to what the Supreme Court judgment has been, what has it changed, and if you can trace a little bit of history of the Hindu Succession Act so far, that will be great and set some context for our audience. Thanks for having me. It's a pleasure and an honor to speak on this forum. So to get right to the point, what this judgment does is not create a new law. What it has done in effect is sort of provide a clarification on how to interpret one part of the Hindu Succession Act. Before I get into what the dispute was that the Supreme Court resolved, or what was unclear that the Supreme Court clarified, let's take a step back and just see how inheritance works in the Hindu Succession Act in the first place. So the Hindu Succession Act in 1956 codified the customary law of inheritance and succession. So till that point, there wasn't a formal legal instrument which defined how succession and inheritance will work among Hindus. I mean, that's a slightly loose statement. There were a few, like the Hindu Women's Right to Property Act and such, but let's not count them right now for brevity. So 1956, the Hindu Succession Act is sort of the main one which deals with inheritance, applies to Hindus, Sikhs, Jains, and Buddhists. And what it did was it sort of drew from the two dominant customary schools of thought at the time, the Mitakshar and Dayabhag, and codified it into law. And of course, there are some exceptions for the matrilineal schools which were prevalent in the south, like Marumakata and so on. Okay, so the scheme of inheritance in the 1956 Act revolves around the joint family, the Hindu joint family. And since the person most central to the joint family is the patriarch, and the name of the family and the continuity of the family is therefore traced through the male lines, all of the rights over ancestral property were traditionally sort of vested with all of the male members of the family. And how it worked is interesting, and it's a little complicated. It's called a co-parsonary. So how it works is this: say there's a patriarch A, let's call him, and this person has 2 sons and a daughter. So let's call his share of property 100%. The moment his first son is born, the son acquires a notional right over 50% of that property. So now it's not demarcated immediately, it's a notional right. So if that son, whenever that son chooses to partition the property, he has the right to do so. So there's a notional right over 50% of the property created. Now when the second son is born, the whole property gets divided again among the 3 of them. So now each of them has a notional right over 30% of the property. This is a system called co-parsonary. Okay? So co-parsonary means that the right is created at birth. Now the other side is inheritance, where the right is created when the person dies. So what happens when the father dies? What happens to his share of the property?
So while we were still working under customary law with the system of coparcenary in Mitakshara, the deceased person's rights would flow to the remaining coparcenaries, the survivors. So that's the concept of survivorship, which you will also encounter in the judgment. What the Hindu Succession Act did was sort of made a hybrid of the Mitakshar coparcenary system and the succession upon death, which was given in Dayabhag, and some aspects of English common law, and introduced the concept of inheritance through lineage. So now what happens is, it's not just if a person dies, if a male in the family dies, his interest doesn't just go to the other co-parceners, it can also go to his wife, it can go to his children, like unmarried daughters and so on. So that is one big change that the Hindu Succession Act did. It's what is important here is that at this point, daughters did not get coparcenary rights. So while sons immediately got a right, a notional share of the ancestral property, daughters did not. And there was a long struggle over this reform, and it was in 2005 eventually that the central government amended the Hindu Succession Act to grant daughters coparcenary rights equal to sons. There were, of course, examples in between. Kerala just completely abolished the system of joint family property. Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh, they introduced a similar amendment to the 2005 amendment, but way back in the 80s. And in fact, the impetus for amending the law was sort of taking a cue from the state's amendments. So this amendment was Section 6, which said that now daughters are also going to get equal rights over ancestral property as by the sheer fact of their birth. So this was the main change that the 2005 amendment made. Now, this is where things start getting interesting and where the litigations start. What happens to property which has been governed and whose coparcenary rights have been given to sons so far, and now after the daughters have been born, they've been married, they've gone about their lives, what happens to property which has already passed on to people? So say, for instance, the patriarch has died, the father has died, the property has devolved to his sons. What happens to the woman's right in those instances? Do we consider the date of the death of the father in deciding whether the woman should get property rights? What if the sons who inherited the property before 2005 had already sold it? What happens to the woman's unrealized right? Should they be able to go back and claim that I had a right over that, and the fact that they sold off the property without my consent was a violation of my right? So this led to a flood of litigation, and the two important ones which the Supreme Court, the recent Supreme Court judgment also refers to. One is Prakash and others versus Pulvati, in which the court ruled that if the father is deceased before 2005, which is when the amendment took place, then the daughter will not get coparcenary rights. But in another, and I'm really, really shortening this, there were a lot of intricacies here. So what I would encourage our viewers to do is go back and read it, because it's all fascinating arguments. And then in the other case, in Dhanama and others versus Amar, the Supreme Court ruled the other way, where it said that the father doesn't have to be alive. The point is that the right is it comes into existence on the birth of the daughter. So irrespective of whether the father was alive or dead at the time when the act was passed, the daughter would have rights over it. Now, of course, the act also issues some caveats and says that it takes out a lot of this complexity, saying that if the property was sold before the enactment of this amendment, then nobody can go back and claim that my rights have been violated, and so on and so forth. And the Supreme Court also reiterates these. The problem remained that this dispute hadn't been resolved. So you had two contradictory judgments, one saying the father had to be alive, the other saying that the only thing that mattered was the daughter's date of birth at the time of the amendment. So what the Supreme Court has now gone and said is that the latter is what holds. So the date of the death of the father is immaterial here, since the whole concept of a coparcenary is based on when that person is born. You can't take away, you can't say that the woman doesn't get a coparcenary right because the person from whom she was supposed to get a share has died. The right was created when she was born.
So even Right. if it was before 2000, and that is really the sum and substance of the current Supreme Court judgment. So I wouldn't say that it's anything radical really. It sorts out a very nuanced problem that the amendment had created, and the problem only existed because we first decided to treat women unequally, and then decided, okay, that's a bad idea. Women should be treated as equals, and that sort of landed us here. There are, of course, lots of things that still need fixing in the Hindu Succession Act, and as we carry this conversation ahead, I suppose we'll discuss a few of them. Great. Thanks, Devendra. I think this is super useful for everybody to know. But I think you are right when you said that it's a small tweak that has been sorted out with this judgment, but it's a very progressive stand that the Supreme Court has taken. So, Shipra, I'm going to come to you now. Since you have done a lot of research around state laws, do you think now that this judgment has also come and this amendment happened in 2005, everything is sorted legally when it comes to women's right to property, या अभी भी कुछ गुंजाइश है for any laws to be changed, and to become more progressive? गुंजाइश तो अपराजिता इस सवाल का छोटा सा अगर छोटे शब्दों में उत्तर देना चाहें तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम लाउड एंड क्लियर ये बोला है कि डॉटर्स आर इक्वल irrespective of their marital status and they need to be treated equally. तो इसको कुछ और तरीके से इंटरप्रेट करने की ऐसे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई शक ही किसी को होना नहीं चाहिए और कोई रुकावट ही नहीं होनी चाहिए समझने में. लेकिन जब हम इसको कानून में देखते हैं और कानून के उलझनों के बीच में जाते हैं तो सच बताऊं तो ये एक बहुत ही गहरा जाल है जिसको सुलझाकर समझना मेरे खुद के लिए बहुत मुश्किल था. आप मेरे से सवाल पूछ रही हो तो जरूर मैं कोशिश करूंगी कि इसको जितना सरल हो सके उस तरीके से सभी सुनने वालों को समझाने की कोशिश करूं. इस उलझन की सबसे बड़ी जो जड़ है वो यहाँ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एग्रीकल्चर को जो है वो स्टेट सब्जेक्ट समझता है, स्टेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन सक्सेशन उत्तराधिकार वो जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है कि उत्तराधिकार के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, जबकि कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में केवल स्टेट्स बना सकती हैं. तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे सक्सेशन के लॉज हैं, जैसे कि अभी देवेंद्र जब हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बता रहे थे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट एक सेंट्रल लॉ है जो कि कायदे से पूरे देश के हिंदू और उनके साथ जो भी जुड़े हुए बौद्ध, जैन वगैरह लोग जो कानून डिफाइन करता है उन सब के ऊपर लगता है. लेकिन क्योंकि स्टेट्स इस लॉ को अमेंड कर सकती हैं तो जैसे कि देवेंद्र ने बताया कि कुल 5 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका. इन लोगों ने 2005 से काफी पहले लेट 80s और अर्ली 90s में ही अपने लॉज को अमेंड करके डॉटर को को-पार्सिनरी तभी से बना दिया था, 2005 से काफी पहले. लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन 5 स्टेट्स ने तो प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट किया, लेकिन वहीं पर अगर हम हरियाणा को देखें तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने कि 2 बार ये कोशिश करी कि जो 1956 एक्ट के थ्रू भी औरतों को राइट मिले हैं वो भी वापस खींच लिए जाए कि उनको वो राइट मिले ही ना. तो 2 बार हरियाणा की स्टेट असेंबली ने इस तरह का प्रोविजन पास करा, लेकिन वो प्रेसिडेंट का उनको स्वीकृति नहीं, सहमति नहीं मिली, इसलिए वो लोग उसको लागू नहीं कर पाए. ये तो हुई एक प्रॉपर्टी एक्ट की बात. इसके बाद जब हम स्टेट के लॉज में बहुत सारे जो कानून हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, है क्या कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब 2005 में बदलाव लाए गए उसके पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक प्रोविजन था. वो प्रोविजन बड़ा स्पष्ट था और वो प्रोविजन ये कहता था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये राज्यों की एग्रीकल्चर लॉज पे नहीं लगेगा. तो ये क्लियर था कि ये एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं लगता. लेकिन 2005 में जब अमेंडमेंट्स हो रहे थे उन्हीं अमेंडमेंट्स के बीच में इस प्रोविजन को हिंदू सक्सेशन एक्ट में से निकाल दिया गया, हटा दिया गया. तो जब हटा दिया गया तो एक जनरल परसेप्शन ये आया
कि अब जो है एग्रीकल्चर लैंड पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। पर हुआ क्या कि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया, या लोगों ने क्रिएट करके रखा है। बट है ये कि एग्रीकल्चर की लॉज जो स्टेट्स में है वही प्रीवेल करती है एग्रीकल्चरल लैंड के इनहेरिटेंस के लिए। अब इसमें पेज क्या आता है कि हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं। अब किस स्टेट ने कौन सी लॉ लागू कर रखी है और उस लॉ के अंदर क्या प्रोविजन है, ये समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो मैंने जब ये चीजों को अध्ययन करना शुरू किया तो सारे स्टेट की लॉज को देखा, और अगर हम मोटे तौर पे समझना चाहें तो इन सभी स्टेट की को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 28 स्टेट्स जो है इसको, सबसे पहली कैटेगरी में वो स्टेट्स हैं जो कि एकदम साफ साफ कहती हैं कि हमारी स्टेट में एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी पर्सनल लॉ लगेगी, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, या फिर मुस्लिम है तो शरिया लॉ, या फिर क्रिश्चियन है तो इंडिया सक्सेशन एक्ट लगेगा। ऐसे राज्य हैं, एमपी है, राजस्थान है, जो कि इस बारे में एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पे पर्सनल लॉ ही लगेगी। दूसरे जो राज्य हैं वो है जो कि इस बारे में चुप है, जिन्होंने न तो ये कहा है कि वहाँ हिंदू पर्सनल लॉ लगेगी और न अपने स्टेट में कोई अलग से इनहेरिटेंस का प्रोविजन बनाया है। ज्यादातर राज्य इसी कैटेगरी में आते हैं, और इसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ज्यादातर राज्य सब इसी कैटेगरी में है। और इन राज्यों में क्या होता है कि क्योंकि इन राज्यों में कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो पर्सनल लॉज है वही अप्लाई हो जाती है। जो तीसरी कैटेगरी है राज्यों की, वो तीसरी कैटेगरी में वो राज्य हैं जहां पर कि एग्रीकल्चर की लॉ में अलग से इनहेरिटेंस के प्रोविजन है, और ये राज्य है मोस्टली नॉर्थ वेस्ट रीजन के, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे राज्य हैं। इन सारे राज्यों में एग्रीकल्चर की लैंड के लिए अलग इनहेरिटेंस प्रोविजन है, और अनफॉर्चुनेटली ये वाले जो प्रोविजंस है ये सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं। इन राज्यों में एग्रीकल्चरल लैंड पे जहां भी औरतों को अधिकार दिए गए हैं, एक तो वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड राइट्स का मतलब है कि औरतों को जब तक वो जिंदा है तब तक उनको उस लैंड को यूज करने का राइट तो है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती हैं, या उस पर ये भी लिमिटेशन है कहीं पर कि अगर 2 साल तक आपने उसमें एग्रीकल्चरल लैंड में कल्टीवेशन नहीं किया तो वो लैंड वापस चली जाएगी। इस तरीके से ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, और अगर उनको बेचना है तो बाकी जितने जमीन के दावेदार हैं उनसे सबसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी सबकी सहमति चाहिए होती है। इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं। अब इसमें हर एक राज्य में अलग अलग प्रोविजन है। किसी में जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश को देखूं तो उत्तर प्रदेश ने 2016 में कुछ अमेंडमेंट करके अनमैरिड डॉटर्स को तो राइट दिया है, लेकिन मैरिड डॉटर्स को नहीं दिया। अगर हम उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां पे मैरिड हो या अनमैरिड हो किसी भी डॉटर को राइट नहीं है, हालांकि विडो को और मदर को राइट है। पर अगर हम इधर चले जाए, हरियाणा में चले जाए, तो वहां पे मदर को भी कोई राइट नहीं है और डॉटर को भी कोई राइट नहीं है और विडो को भी कोई राइट नहीं है। और ये प्रोविजंस अब इनको ट्रैक रखना कब किसने क्या चेंज कर दिया है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर ये इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशन वर्कआउट करता है। और जो चौथी कैटेगरी है उसमें आते हैं स्पेशली वो स्टेट्स जो कि शेड्यूल 6 में है, जैसे कि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पर जहां पर कि केंद्र के कानून नहीं चलते, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है और वहां पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके अपने कस्टमरी लॉज हैं जो कि रखते हैं। जनरल धारणा ये है कि कस्टमरी लॉज जो ट्राइबल्स में होते हैं वो बहुत ही इगैलिटेरियन होते हैं, समानतावादी होते हैं, लेकिन मैं अभी झारखंड के कानूनों का अध्ययन कर रही हूँ, झारखंड की मैं लॉज देख रही थी, और मैंने देखा कि वो एकदम हार्शली पेट्रीलिनियल है, बिल्कुल ऐसे है जहां पर कि लड़कियों को जमीन मिल ही नहीं सकती, चाहे वो बेटी की तरह या पत्नी की तरह। और होता क्या है कि जब हम खाली उसको मेंटेनेंस राइट देते हैं ना, जब आप किसी से बात करने जाए बदलाव के लिए तो लोग कहते हैं अरे औरतों को रहने खाने को तो मिल रहा है, जब तक वो है उनको रहने को मिलेगा, मेंटेनेंस तो मिल रहा है, तब और क्या चाहिए। लेकिन मैंने झारखंड में जब औरतों से मिली तो मैंने देखा कि
मेंटेनेंस राइट होना उनके ऊपर वायलेंस होने का एक कारण बन जाता है। इसलिए बन जाता है क्योंकि वो जब तक जिंदा है तब तक तो उनको मेंटेनेंस देना है। तो क्या होता है कि जो सब्सिक्वेंट राइट ओनर्स हैं, जिनको कि पक्का उस पे जमीन पे हक मिलना है, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसके बाद अगर उसके भाई को मिलना है, तो जब तक उसकी पत्नी या विडो जिंदा है तब तक वो उसको एक कांटे की तरह देखता है रास्ते में, और वो उन औरतों के लिए जिंदगी की ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि बस ये तो किसी तरह यहाँ से छोड़ के चली जाए, क्योंकि अगर वो वहां से छोड़ के चली जाएगी, 1 साल जमीन नहीं बोएगी, तो वो जमीन अपने आप उस जो राइट होल्डर है इन वेटिंग, तो वो उसको राइट मिल जाएगा। इसीलिए झारखंड में मैंने देखा कि बहुत सारी विच हंटिंग के केसेस है जहाँ औरतों को डायन करके प्रचलित कर दिया जाता है कि ये डायन है। और मतलब अगर मैं पिछले 1 साल का आंकड़ा देख रही थी तो अकेले झारखंड में जितनी डायन से डेथ हुई है वो 27% अकेले झारखंड में हुई है। और मतलब ये डेटा बहुत ज्यादा है। और औरतों की जिंदगी में अगर जाके देखी तो मुझे तो लगा कि ये मेंटेनेंस राइट ज्यादा उनके लिए नासूर है और मुश्किल है। अब हुआ क्या कि जब ये एग्रीकल्चर की लॉज जब बन रही थी, ज्यादातर जितने स्टेट रेवेन्यू लॉज हैं ये सब कॉलोनियल पीरियड की है। जैसे कि बिहार टेनेंसी एक्ट है वो 1885 का बना हुआ है, 1885 का। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है तो वो 1908 का बना हुआ है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है वो 1925 का बना हुआ है। तो ये सब बहुत पुराने ब्रिटिशर्स के जमाने के एक्ट हैं बने हुए। और जब कॉलोनियल रूल के समय वो लोगों का जो पूरा फोकस था एग्रीकल्चर में, वो केवल था कि जमीन की दावेदारी अलग अलग तय कर देना, इंडिविजुअल टाइटलिंग, जिससे कि वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जब उन्होंने लैंड टाइटलिंग की जो भी व्यवस्था करी उसमें सिर्फ ये देखा कि लैंड टू द टिलर, जो जमीन को जोतता है जमीन उसके नाम पर होगी। तो केवल पुरुष को उन्होंने टिलर की तरह देखा और पुरुष को ही रेवेन्यू लॉज में लैंड होल्डर की तरह देखा। नतीजा क्या है कि ये तो मैं इनहेरिटेंस प्रोविजंस की बात कर रही थी कि जो इतने डिस्क्रिमिनेटरी हैं, पर इसमें अगर आप पूरे स्टेट के एग्रीकल्चर को लॉज को देखें तो पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है, पूरी की पूरी भाषा है, इट्स हाईली एंड्रोसेंट्रिक। एंड्रोसेंट्रिक मतलब वो लैंड होल्डर देखते ही सिर्फ पुरुष को है, वो ये देखते ही नहीं कि कोई महिला भी लैंड होल्डर हो सकती है। वो कहेंगे जमीन का मालिक, उसको एक पुरुष की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन्हीं कानूनों को पढ़ता है, उन्हीं को अमली जामा पहनाता है। तो औरत को एक जमीन के होल्डर की तरह, राइट होल्डर की तरह देखते ही नहीं है। और उसका परिणाम ये है कि हम एक तरफ तो हमारे आंकड़े देश के ये बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली औरतें लगभग 75% औरतें खेती में काम करती हैं, लेकिन वहीं हम अगर खेती जोतने की बात करें तो लगभग खाली 13 से 14% औरतें हैं जो कि खेती के ऊपर जिनको मैनेजमेंट राइट्स हैं। एक्चुअल ओनरशिप की अगर बात करते हैं तो वो अलग अलग डेटा 2, 3, 4% से आगे नहीं बढ़ते। तो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है औरतों के एग्रीकल्चर में काम में और उनकी ओनरशिप में। तो इन सारे जो मैंने उलझे हुए लॉज हैं इनके बीच में ये पता लगाना ही अपने आप में एक काम हो जाता है कि किस स्टेट में किस रिलीजन के व्यक्ति पे कौन सी लॉ लगेगी। और फिर औरतों के बारे में तो वो शादी हो गई कि विधवा है कि सेपरेटेड है या फिर अनमैरिड है, इन सब के हिसाब से प्रोविजंस बदलते रहते हैं। तो ये सब कुछ को सॉर्ट आउट कर पाना एक बहुत ही उलझी हुई खिचड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा रास्ता है जो कि जिसको कि तय करना जरूरी है ये सब चीजें सॉर्ट करने के लिए। पर अगर एक दृष्टि से देखती हूँ कि कुछ एक दृष्टि पे सोचती हूँ कभी कभी कि ये कितना सिंपल होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियां और लड़के एकदम बराबर हैं, तो कोई वो राइट हो, कोई इसमें डिस्पैरिटी होनी ही नहीं चाहिए, कानून एकदम सिंपल होना चाहिए। पर हमने इतनी कॉम्प्लिकेशंस में उसको उलझा के रखा हुआ है। थैंक्स शिप्रा। आई थिंक आपने जो बताया, स्पेशली ये कि ट्राइबल कम्युनिटीज में भी ऐसे कानून हैं, वो एक्चुअली काफी लोगों को पता नहीं होगा। एंड जो आपने जैसे बोला कि ये खिचड़ी सी है
कानून की, जब हम जैसे लोग जो कि इस चीज को पढ़ रहे हैं वो सुलझा नहीं पा रहे, तो एक औरत के लिए ये जानना कि कौन सा लॉ उसके लिए है और वो क्या उनका हक है, बहुत ही मुश्किल है। एग्जैक्टली। मैं मौसमी को बुलाना चाहूंगी डिस्कशन में। मौसमी हरियाणा स्टेट लीड है ब्रेक थ्रू इंडिया के साथ, वो खुद भी बहुत ग्रास रूट पर काम करती हैं हरियाणा में, एंड आगे की डिस्कशन आई थिंक मौसमी लेकर जाए तो अच्छा होगा। थैंक यू अपराजिता एंड थैंक यू शिप्रा, आपने अगले सवाल के लिए बिल्कुल ही एकदम कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। मैं मनीषा से एंड फिर शिप्रा आपसे भी पूछना चाहूंगी कि हम कानून जो अपराजिता अभी बोल रही थी कि ये तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए था कि कानून ने बता दिया फिर ये ऐसे ही होना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत में 80% आबादी जो है वो गांव में रहती है। तो मनीषा जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्या गांव में इसमें औरतों की स्थिति में कोई परिवर्तन आए? क्या गांव के लोग इसको समझ भी पाते हैं कि ये कुछ बदलाव, ये कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं और हमें उनको एक्सेस करने की कोशिश भी करनी चाहिए? धन्यवाद मुझे जो है आज के जो ये वेबिनार में शामिल करने के लिए। तो पहले तो मैं गांव जाने से पहले जो है वो मैं कुछ जो जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, जिसको हम कॉमन सेंस मानते हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है बात करना चाहूंगी। तो पहले तो ये है कि हम जो पूरे हिंदू सेक्शन, ये जो भी प्रॉपर्टी या कोई भी राइट्स जो हम देखते हैं, ये हमें, जैसे देवेंद्र ने भी पहले कहा था, बाकी भी अभी जो है शिप्रा ने भी कहा कि इसको हमें पितृसत्ता के अंदर ही देखना चाहिए। और उसके साथ में मैं दूसरा जो है वो हेट्रोनॉर्मेटिविटी, मतलब जो कि आप अगर विषम लिंगी है तब भी आप नॉर्मल है, इनके लिए ही सीमित है। आप शादीशुदा है तभी आपके लिए सीमित है, आपके पास प्रॉपर्टी है तभी तब आपके लिए सीमित है। तो कई लोग ऐसे एनटी है, डीएनटी है, माइग्रेंट्स है, कई सारे लोग हैं, गरीब है, तो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए तो ये कानून का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये जो है पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी राइट्स की बात ही जब हम करते हैं तो जस्ट इन दैट डेफिनेशन हम लोग कई लोगों को एक्सक्लूड पहले कर लेते हैं। पर फिर भी इसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो इस तरह की हो जाती है कि एक तो बात ऐसी होती है गांव के लेवल पे कि ससुर जो है उनके नाम पे भी अभी जमीन नहीं है। मतलब जो दादा ससुर है उनके नाम पे जमीन है, तो इसलिए पति के नाम पे ही जमीन नहीं है, तो फिर औरत के नाम पे कहाँ से आएगी और उसके बच्चों के नाम पे कैसे आएगी? तो एक तो ये जब हम देखते हैं कि हाउ टू 7/12 जो कहते हैं उसको, तो उसको हम कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब माँ पिता जब है जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो औरत को ये लगता है कि मेरे अगर मायका जो है अगर उसका रास्ता खुला रहना चाहिए, तो फिर मुझे सब छोड़ देना चाहिए। तो मराठी में हम उसको चोरी बांगड़ी कहते हैं कि साल में एक बार भाई कुछ जो है वो थोड़ा बहुत उठा के दे देता है। और आजकल अपनी जमीन बेचता है तो लाखों करोड़ों में जमीन बेचता है, लेकिन कुछ एक 50,000 लाख रुपया दे के बहन के जो है वो एक दस्तखत ले लेता है उसके ऊपर। लेकिन यही आदमी जो है वो अपनी बहन को देता नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को कहता जरूर है कि तुम अपने घर से जो है वो ये मांगो। वो अपने जो है दहेज का सेकंड और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको समझ के जो है वो करता है। जहां पर बेटा नहीं है वहां पर क्या करते हैं, फ्यूनरल के लिए भतीजे को बुलाते हैं, तो फ्यूनरल जिसने किया, अग्नि जिसने दी, वो इनहेरिटेंस मांगता है उसके बाद में। तो ये सारी जो प्रथाएं हैं ये कोई एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं है। और इसलिए मैं बार बार जो है वो स्ट्रक्चर्स की तरफ मैं जाऊंगी कि औरतों को जो है वो घर छोड़ना क्यों पड़ता है, कहीं और क्यों जाना पड़ता है। तो ये सारी जो बातें हैं, फिर बातें की ऐसी जाती है कि अरे वो तो ये गांव छोड़ के कहीं और चली जाएगी ना, तो फिर उसके जमीन का क्या होगा? तो हम हमेशा पूछते हैं, अब तुम्हारा एक भाई शहर चला जाता है तो तुम क्या करते हो? कुछ ना कुछ तो करते हो कि नहीं करते हो? कई बार ये कहा जाता है कि डबल उसको मिलेगा, यहाँ पर भी उसको मिलेगा और वहां पर भी उसको मिलेगा, ये भी बात की जाती है। तो डबल का मतलब क्या है? जिस घर में वो पैदा हुई है वो तो उसके हक का है, और शादी के बाद में जो आदमी और औरत इकट्ठा कमाते हैं वो तो उनका आधा आधा है। तो आदमी को अपने घर से मिलेगा वो उसका है। शादीशुदा जब तक वो इकट्ठा रहते हैं तब तक वो दोनों का आधा आधा है। जब वो चले जाएंगे
तब वो अपना लेके चली जाएगी और ये अपना लेके चला जाएगा। अगर ये जिंदगी भर साथ में गुजारा करते हैं तो उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसका इनहेरिटेंस हो जाएगा, तो डबल का तो कोई मतलब समझने की बात ही नहीं है। लेकिन इस तरह से अपोलोजिस्ट आर्गुमेंट्स जो है ये बहुत सारी जो है बातें की जाती है। कई बार मर्द कहते हैं कि ताई क्या बोले, अभी तो राखी राखी नहीं रही, अभी तो भाई दूज नहीं रही। औरत बहन जो है उसको अभी पैसा ज्यादा भाई से भी ज्यादा जो है वो लगने लगता है। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई इस वक्त जो है वो भाई दूज में थाली में कागज डाल दो ना उसके इनहेरिटेंस के, हाँ तो अच्छे भाई बनो। मतलब ये सारी जो बातें जो है वो बार बार की जाती है। और औरतों को हमेशा या तो सत्ता दैट इज पावर या तो इज्जत ऑनर, इन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। और अभी जैसे शिप्रा जी ने कहा कि जो औरत जो इस तरह से चूज नहीं कर पाती है या नहीं करती है उसको डायन है, हमारे महाराष्ट्र के यहाँ पे भूताड़ी बोला जाता है। क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम बार ये जो होता है वो एक्चुअली शादी के टाइम पे होते हैं। बहुत सारे क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर जो है इनका एक मटेरियल बेस होता है और इसमें भाइयों को जो है वो उसकी जमीन हड़पनी होती है या वो जमीन कस रही है तो वो लेनी होती है, ससुराल वालों को जमीन वापस लेनी होती है। तो इस लड़की का या इस औरत का इस आदमी के साथ कुछ था और ये करके जो है उसको मरवा दिया तो उसकी जमीन उनके पास वापस आ जाती है। अभी ये जो है वो बैकलैश भी अगर हम देखें कि कई बार जो है वो आप देखेंगे कि रूलिंग क्लासेस में सती थी, या जहाँ पे जमीन थी वहां पे छोटे देवर के साथ में शादी करवा देते थे। तो ये सारा जो है कि प्रॉपर्टी जो है वो उन मर्दों के नाम पे हो ताकि वो लीनियज जो है वो हमें पता हो कि किसका बीज जो है वो आगे जा रहा है। और ये इनहेरिटेंस एक्चुअली औरतों को इसलिए नहीं मिलता है, इसमें भी पितृसत्ता की साजिश है कि अगर आप उसको इनहेरिटेंस देंगे तो आधे से लड़कियां शादी नहीं करेंगी। तो इनहेरिटेंस इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि उसको शादी के अलावा दूसरा कोई पर्याय ना हो, और इसलिए उसको उस पितृसत्ता शादी में धकेलने के लिए पितृसत्ता जो है वो इनहेरिटेंस नहीं देती। अब आखिर में एक दो मिनट में मैं जो कहूंगी फिर इसका असर क्या होता है। उसके नाम पे जमीन नहीं है, उसके नाम पे वो नौका नहीं है, तो सुनामी में चली जाएगी तो नुकसान भरपाई किसको मिलेगी? भूचल हो जाता है तो घर गिर जाता है तो किसको मिलेगा? अगर जो है वो किसान नहीं है, हाँ? और अगर वो जो है खुदकुशी करती है तो इट्स नॉट अ फार्मर सुसाइड, जबकि हम जानते हैं कि 70 से 80% काम खेत के ऊपर जो है बैक ब्रेकिंग लेबर जो है वो कई बार औरतें वहां पे करती है। फिर जमीन जो है उसको अगर पानी भी है कितनी बार चक्कर लगाएगी वो, उसको कागजात की मालूमात नहीं है। फिर कई बार तलाटीज और जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स है इसके लेवल बोर्ड इसके तहसील के लेवल पर भी उनका जो एटीट्यूड है, जब एक जीआर निकला था जो आप जब पूछेंगे मतलब आगे अगर बात निकलती है कि क्या हासिल हो पाया, सारी बातें कोई इतनी बुरी या डरावनी नहीं है, काफी कुछ हम हिम्मत छोड़े हुए नहीं है ना, औरतें हिम्मत छोड़ी हुई है। तो इसलिए ये अगर होगा तो उनकी भी जो उनका एटीट्यूड जो होता है कि अरे आप घर दोनों के नाम पे करना चाहते हो, औरत तो आदमी को घर से बाहर निकाल देगी। अब जॉइंट ओनरशिप में कैसे वो घर से बाहर निकाल देगी आदमी को? पर ये जो पूरे एटीट्यूड्स है, या आदमी मर जाता है तो लड़कियों की बेटियों के साथ में औरत को दफा किया जाता है, बेटों को वापस रखा जाता है, या बच्चों का नाम अगर उसको अपने इस पे चाहिए, टाइटल्स पे चाहिए, तो उसको कहा जाता है कि तुम पहले अपना जो है हिस्सा पहला वहां का छोड़ दो। या वो काम करती भी, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई आता है और हम कहते हैं कि ये जमीन ये कसेगी, तो इतनी परेशानी उसके लिए खड़ी की जाती है वहां पर कि उसको आखिर में वो छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये जो है वो गांव के और शहर के लेवल पे भी बातें वही है। शहर के लेवल पे जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से की जाती है, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। हमारे गांव के लोग इन दैट सेंस काफी खुली है उनकी जिंदगी, तो उनका दिखने में आ जाता है। थैंक यू मनीषा जी। और जैसे जैसे आप बोल रही थी और मुझे अपना 2018 साल याद आ रहा था। हरियाणा में हम लोगों ने बीड़ा उठाया और सोचा कि बहुत आसान बात कर ली, चलो थोड़ा प्रॉपर्टी का बात करके देखते हैं और देखते हैं हमारे क्या हर्ष होती है वहां पे, मार खा के वापस आएंगे कि क्या होगा। तो हिम्मत किया हरियाणा के जैसे जगह में जाके प्रॉपर्टी की बात करने की। लोगों ने हमें मारा नहीं, भगाया नहीं, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी नहीं।
जब हम ये बात करने के लिए गए तो जो लोग, गांव के लोग हमें पहले से जानते थे या गांव के जो सरपंच थे, उन्होंने कहा ये क्या बात करने आए हो, कल तक तो तुम लोग ये बोलते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, वहां तक ठीक था, ये जमीन जायदाद की बात, ये सब बातें गांव में ना करो, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। बट जो मनीषा जी, जो आश्चर्य लग रहा था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पितृसत्ता तो औरतों में भी हो सकती है, तो ये औरतें या तो वायलेंस के डर से या तो जो भी था, उनके चेहरों पे एक सन्नाटा था, और वो सोचते थे कि ये कब अपनी बातें खत्म करे, अपनी ये नुक्कड़ नाटक खत्म करे और यहाँ से चले जाए इसको बंद करके। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें, और जो आप कह रही थी महाराष्ट्र के बारे में, हरियाणा में भी यही देखने को मिलता है, अच्छी बहन, अच्छी औरत, अच्छी औरत शेयर नहीं मांगती है, तो ये सभी जगह में प्रिवेलिंग है। शिप्रा जी, क्योंकि आपका भी बहुत सारा रूरल कनेक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट है, तो यही सवाल अगर मेरा आपसे भी है, क्या जमीनी स्तर पे कुछ बदला है, या जैसे मनीषा जी कह रही हैं, हम हौसला तो नहीं छोड़े हैं, होएगा बदलाव, मे बी इट्स लिटिल स्लो, बट वी विल रीच देयर वन डे। बट आज की परिस्थिति पे अगर अगर आप भी थोड़ा लाइट थ्रो करें तो। जरूर, धन्यवाद मौसमी। तो मौसमी, बहुत सारी बातें मनीषा ने बहुत सही परिप्रेक्ष्य में रखी, और आपने भी अपने अनुभव बताए। बिल्कुल गांव में यही होता है, औरतों के सारे अधिकारों की बात लोग सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन इतनी पावरफुल चीज है ना, कि जैसे ही आप उसकी बात छेड़ो तो पूरा थरथराने लगता है कि अच्छा, जमीन और प्रॉपर्टी, इसका भी अधिकार मांगेंगे, तो वो पूरी तरीके से शेक कर देता है और लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर इन अधिकारों को हासिल करने में मैं सोचूं कि मुश्किलातें क्या है, तो मुझे लगता है सचमुच एक तो लॉ अनइक्वल अपने आप में है, लेकिन जहाँ पे अनइक्वल नहीं भी है, जो इक्वालिटी है भी लॉ में, तो औरतों को खुद को उसकी अवेयरनेस नहीं है कि क्या कानून है। और अगर अवेयरनेस भी है, तो जिसको मैं कहूंगी कि असर्ट करने की ताकत, वो बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि हमारी पूरी अपब्रिंगिंग में ऐसा इंटरनलाइजेशन होता है ना, एक सेल्फ डिनायल का वैल्यू सिस्टम, जिसको आप कह रहे थे, वही औरत या लड़की अच्छी है जो अपने अधिकार नहीं मांग रही है। तो वो एक इंटरनलाइजेशन जो होता है, वही औरतों के को सन्नाटे में ले जाता है, वही आवाज खोलने नहीं देता है। और ये कहना आसान है कि औरतें लड़ाई नहीं करने के लिए आगे नहीं आती, पर सच ये है कि ये लड़ाई मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि ये लड़ाई मतलब किसके अगेंस्ट है? उन लोगों के अगेंस्ट है जिनसे औरतें प्यार के, घर के लोग हैं, उनके अपने भाई हैं, उनके अपने पिता हैं, या आसपास के लोग जिनके साथ वो रोज जिंदगी जीती है। तो उनसे लड़ना भी बहुत बहुत मुश्किल है। और साथ साथ में ये वैल्यू सिस्टम और जो पूरा मनीषा ने बताया कि पूरे रीति रिवाज सारे इस तरीके से गुथे हुए हैं कि लड़कियों को तो दूसरे घर में चले जाना है। मैं क्वेश्चन भी देख रही हूँ चैट बॉक्स में कि अगर मैंने औरत पति के घर चली जाती है तो उसको पति के जमीन में हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज स्पष्ट तौर पे समझ लेनी बहुत जरूरी है कि हमारा कानून आज भी पति के जमीन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट में औरत को कानूनी हिस्सा तब तक नहीं देता जब तक पति की मृत्यु न हो जाए। वो जब ससुराल में जाती है, किसी का ससुराल में जाके वहां जमीन पर हिस्सा नहीं है, कोई कानूनी हक नहीं है किसी भी बहू का या किसी भी पति को भी है तो मेनेंस राइट की तरह है, लेकिन पति के जमीन पर कानूनी हिस्सा नहीं है ससुराल की जमीन में। कि जो देवेंद्र कोपार्सिनरी समझा रहे थे, उसमें जब औरत जाती है तो वो कोपार्सिनरी में उसका राइट नहीं होता है। तो पति का राइट पति के घर में ससुराल में तभी मिलता है जब पति गुजर जाता है। तो ये बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो लीगल राइट सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से लाउड एंड क्लियर दिया है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मनीषा ने डाउरी की भी बात करी थी कि बहुत जगह लोग ये बोलते हैं कि शादियों में दहेज तो हमने दे दिया, लेकिन वो जो दहेज के भी विरोध में तो कानून कब से, दहेज तो कोई न तो लीगल है और न ही दहेज अधिकार है। और प्रैक्टिकली भी बहुत सारी औरतों की जिंदगियों को उठा के देख ले तो दहेज में मिली हुई कोई सी भी चीज औरतों के खुद के इस्तेमाल के लिए रह ही नहीं जाती, वो पूरे
घर की प्रॉपर्टी हो जाती है और दहेज का मिला कोई भी सामान औरत अधिकार की तरह कभी हासिल नहीं कर पाती। और अगर दहेज मिलता है तो जो मैरिटल प्रॉपर्टी होती है उसका कोई आमतौर पे छोटा हिस्सा ही होता है, प्रॉपर्टी के हिस्से के बराबर में दहेज कभी हो नहीं सकता। तो इस तरीके से बहुत सारी इनइक्वालिटीज है। मौसमी आप थोड़ा सा ये भी बात करने को कह रही थी कि क्या चीजें वर्कआउट करी हैं हम, क्या सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं जमीन पे। मुझे लगता है कि औरतों का मूवमेंट हमारे देश में बहुत एक्टिव और सजग रहा है इन सब मामलों में। इसी वजह से हम 2005 का परिवर्तन जो अमेंडमेंट हिंदुस्तान कानून में आया वो भी औरतों के संगठनों के लगातार प्रयास के बाद आया। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बैठे बैठे थाली में परोस के अधिकार दे दिए। और 1956 में भी जो कानून में अधिकार मिले थे वो भी उस समय के लोगों की बहुत लड़ाई और कंटेस्ट करने के बाद मिले थे। तो ये सारे अधिकार बहुत प्रेशियस हैं और मुझे लगता है बहुत सारे संगठन जो है इन सब चीजों के बारे में काम करते हैं। अगर खास करके मैं लैंडसा की तरह देखूं तो मुझे लगता है जो चीजें मैंने होती हुई जमीन पर देखी है वो ये है कि जब हम औरतों को लैंड लिटरेसी के लिए सेंसिटाइज करते हैं या लैंड जमीन से जानकारी देते हैं तो जरूर उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, उनकी ताकत बढ़ती है। औरतें संगठन में आती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तब भी उनको ताकत मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग कानून है और उसके जो अच्छे प्रोविजंस है औरतों के बारे में, जब उसकी सही जानकारी रेवेन्यू ऑफिशियल्स को होती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है कि ये प्रोविजन है और ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तब वो बदलाव आता हुआ दिखता है। कुछ राज्यों की राज्य सरकारें भी मैं समझती हूँ आगे आती है, ओपन होती है। जैसे कि मैं अगर वेस्ट बंगाल का उदाहरण लूँ तो वेस्ट बंगाल में के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी हुई लगभग 8 मिलियन औरतें हैं। उन सभी औरतों के जो ट्रेनिंग क्यूरिकुलम है उसमें आज की तारीख में लैंड लिटरेसी के सेशन होते हैं जो उनका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का हिस्सा है। ज्यादातर जो भी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे जो सर्विसेज में आते हैं उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन और विमेन लैंड राइट सेंसिटाइजेशन का एक सेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अरेंज करती है जिसमें हम लोग भाग लेते हैं। कुछ संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए, जैसे कि स्पेशली अगर मैं नाम लूँ तो WGWLO गुजरात में है जो विमेन लैंड ओनरशिप के ऊपर काम करती है। उन्होंने गुजरात में कई जगह पर महिला स्वभूमि केंद्र बनाए हैं जहाँ पर कि विमेन पैरालीगल वर्कर्स तैयार हुई हैं जिसमें कि औरतें जा सकती हैं और उनको जो पैरालीगल वर्कर्स हैं वो सपोर्ट करती हैं अपने सभी तरह के लैंड मैटर्स को रिजॉल्व करने में और इनहेरिटेंस राइट्स को भी असर्ट करने में। और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरह के अच्छे कानून हैं जिनको कि हम पॉजिटिव मेजर्स की तरह से देख सकते हैं। Thank you, Shipra ji. Devendra, I'll come to you that Manisha and Shipra both spoke about the rural context. Do you think anything different in a urban context on this equal right? So on there are a few differences, but they mainly relate to, the disparity between men and women is something that we see even in urban areas. So one thing, for instance, which is immediately different is that the laws which govern agricultural land, the state laws, like Shipra said, like the Land Revenue Code in UP or the Zamindari Abolition Act, which contain very similar provisions for inheritance of agricultural land. This was enacted in 1950. So these obviously don't apply to urban areas. That is one. The second is that land ownership rates themselves are lower in urban areas. So land and home ownership rates in rural areas are higher than in urban. So more people in rural areas own their own house and own land than the percentage of people in urban areas. Mainly because in urban areas you have a lot of rental housing. You don't, and there is a large section of people who rent houses. You don't see that in rural areas. It's typically your own homestead. So that is one difference. But in terms of treatment of women, Manisha really put her finger on the pulse. It's that it's not so different.
like this whole idea that a woman doesn't have the capacity or should not be given rights over land, and that the family property is something that should flow through sons, is something that happens even in or quote unquote middle class families. It's not, maybe not as insidious, but if we look around our own families and talk to our female relatives, especially those who got married in the 80s and 90s, we will find lots of examples where after the 2005 amendment, women had to sign relinquishment deeds to relinquish their rights over ancestral property. Now, this is operation. The thing is that what prompts it is usually insidious. Like, nobody is going to go and say that I don't want rights over my ancestral property, right? So typically, it will be positioned from the point of view of, okay, you are the woman and you have to be generous and you have to be the peacemaker and you should do this. So it takes a very moralizing tone rather than an individual rights tone. So it does happen. Now, the problem is that we don't have good data to measure this. So we would think that for how much we care about property and property ownership, we would have better data to see what is happening, one, and to see whether whatever changes and acts and interventions we do they have the effect that we intend them to have. But surprisingly, we have very little data on property and asset ownership. And we have very even less data delineating it by gender. So to my knowledge, agricultural census is one where it only looks at agricultural land. But if we want a generalized survey, the only two that I'm aware of are, one is the NFHS, the National Family Health Survey, and the second is the IHDS, the India Health and Development Survey, or Household Development. I get the acronym, the full form wrong every time. And now the problem with both of these is that they're periodic, because their main objective is not to look at property rights and assertion of property rights. Although IHDS is actually a multi-topic survey, the main objective is towards looking at empowerment and health outcomes and and children's health and women's health. So even though they ask questions about property rights because they are powerful proxies for what kind of decision-making power the woman has in the house, the survey itself isn't designed to study property rights. So one thing that we definitely need to do is get better data, because for instance, the 2005 amendment, which makes it's a big leap forward in terms of equality, in that de jure it gives the same rights over ancestral property to daughters as it does to sons. But now, do we know in how many instances those daughters are made to relinquish their rights over ancestral property by signing relinquishment deeds? Yeah. So what effect did it actually have in the ownership rates, in property ownership rates for women? We don't have a number for that. And sadly, it doesn't seem like we are going to have numbers for this soon either. Yeah. But Devendra, at the urban area, the literacy rate is comparatively high. And Shipra was talking about the awareness, right? So awareness is also high, but at the same time, I am aware that when we talk about violence, then no literacy, no economic status, nothing works, then it is equal in all the places. But I got your point that there is no data related to where we can say strongly that, the urban is a better in a better position than the rural areas. I got that point. So over to you. Yeah, sorry, yeah, if I please. may Yeah, just add sorry. one tiny I thing. wanted to add to Moshmi's question, Devendra. So when it comes to ownership of new property, not the inherited property, we also have incentives like the Indian Stamps Act, right? Where many states give incentives to people to register property in women's name, and the stamp duty is significantly lower given the value of the property. Do you think those have had the kind of impact that we hope to have? So that's a great question, because that was roughly what I was going to point out as well. So before I answer it positively, let me just go back and finish my thought on the previous question about lack of information. We do have some indications that women in urban areas are slowly doing better. There is, for instance, a few reports about the volumes of home loans which are taken out by women.
and that number is on the rise, or it has been since these organizations started recording it. So from 2005 to 2018, they saw a significant rise, I think some 8 or 10% rise in the number of applications, home loan applications by women. And that same report also found that the average value of the home loan application for women is slightly higher than the value that men apply for in their home loans. So there is some, I mean, I don't want to read too much into that last part of it, but the point is that there is some movement around women actually buying their own property, even as we speak about inheritance and so on. On your question on stamp duty, there are, I think, 7 or 8 states which have actually either reduced or completely given a holiday on stamp duty for property titles being registered in the name of women. There is also another aspect where I think PMAY only registers joint titles nowadays. It doesn't, if it's a married couple, it's issued in the name of the couple. I mean, both persons' names appear on the title. It's not individually given anymore. So looping back on what is the impact of this, we are not entirely sure. For the PMAY, we can say that there is joint holding because that is by design. Like you can't have it any other way. But whether the stamp duty incentives provide have any expected outcome, there is only one data point we have there, which is from Jharkhand, and they report that they saw a significant rise in property registration in women's names after they drastically reduced the stamp duty rates for property registration for women. The short answer is we need to find out a little more about this, but from what a little bit we know, it seems to have some effect on it. So maybe it's a good idea to keep up on giving tax rebates. Okay. So, Devendra, my next question will also be to you. That the tax. Okay. So you have already answered that question. My next question will be to all the panelists. You know, as we are talking about the Hindu Succession Act and the recent judgment, yeah, there are lots of negative things which we are talking about. But as I said that मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है. So Manisha, if you can talk about some of the good models which you have seen somewhere, some state which is regarding property that has worked. Shipra spoke about a few. So Shipra, you may also add if you have something in your mind, and also Devendra, maybe at the end also, if you can tell us anything positive that you have seen regarding to properties. So over to you, Manisha. तो मैं ये 2 हिस्सों में करूंगी कि जो मुझे बहुत अच्छा जो मॉडल लगा था वो, और फिर मासूम के जो है अंतर्गत हमने जो काम किया था. मैंने जो पहले जो आपको जो मॉडल बताया था ना कि जो इनहेरिटेंस में लड़की को मिलता है और जो इनहेरिटेंस में लड़के को मिलता है, वो उनका अपना है. फिर वो अगर शादी करते हैं तो फिर वो जो है वो A+B, जो A और B अलग रह जाता है. अगर शादी के बाद में वो जितने समय तक इकट्ठा रहता है तब जो C जो हो जाता है वो C is divided by 2. और अगर वो अलग हो जाते हैं तो A इसके पास जाता है, B उसके पास जाता है और C divided by 2 दोनों के पास जाता है. बट अगर वो जिंदगी भर साथ में रहते हैं या फिर उनके बच्चे जो हैं तो उन बच्चों को A+B+C का जितने बच्चे हैं मिलेंगे. और ये मॉडल हमने म्यांमार में देखा था. जब हम म्यांमार में पढ़ाने जाते थे तो म्यांमार में मॉडल देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जिसमें पूरा जो ये बातचीत चलती है कि औरत को डबल मिलेगा क्या. तो ये जो बात है मुझे लगता है कि इसका एक बहुत अच्छा हल है. अब मासूम के यहाँ पे तहत जो हमने दो जो किए हैं प्रयास, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक तो GR एक था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि जिस घर में हम रहते, होमस्टेड जो है वो पति और पत्नी के जॉइंट नाम पे होना चाहिए. ना अगेन आई वांट टू शो द लिमिटेशंस के हेटेरोनॉर्मेटिव पेट्रियार्कल मैरिज के अंदर है, सब कुछ मैं मानती हूँ, पर फिर भी काफी औरतों को ये कवर कर रहा था. अब ये GR जो है, ये GR निकालने को मासूम को जो है वो कम से कम 6 महीने साल लगे. मुझे ये भी नहीं मालूम कि जब हमने वो इम्प्लीमेंट किया तब वो GR जिंदा था कि मरा हुआ था, ये भी हमें नहीं मालूम. पर ये GR जब निकालने गए तब वहां पे ब्लॉक पे हो गया, अरे आप तो औरतें तो सिर पे चढ़ जाएंगी, मर्दों को घर के बाहर निकाल देंगी.
पर ये जीआर जो है निकाला मासूम ने, उसको जो नाम है घर दोघान से घर दोनों का, ये कैंपेन का नाम दे दिया। और हमने वो जीआर इतना बढ़िया था कि उसमें ऐसा था कि हमें कुछ नहीं करना है, ये ग्राम सेवक और तलाटी की जिम्मेदारी है कि वो सारे नाम जो है वो ज्वाइन करे। और इतना था कि शो कॉज नोटिस थी, आपने क्यों नहीं किया इसका जवाब दे। तो इतना स्ट्रॉन्ग जीआर जो था, चंद्रा अयंगार जी जो थी यहाँ पे सेक्रेटरी, तब उनके समय पे ये जीआर निकला था। उसके बाद में हमने पूरा कैंपेन शुरू कर दिया। इस पूरे कैंपेन में हमने कम से कम 11 से 12,000 घर जो है वो हमने जॉइंट ओनरशिप पे कर दिए। और इसमें हमें जो दो चीजें जो बहुत अच्छी लगी, वो एक था कि बुजुर्ग मर्द थे, उनका सपोर्ट जो हमको मिला। वो हमारे कार्यकर्ता जब गांव गांव में जाते थे तो बुजुर्ग मर्द बाहर बैठे रहते थे कि आके बुढ़िया के नाम, मेरी जो पत्नी है उसके नाम पे प्लीज घर करा दो, मुझे बेटों पे कोई भरोसा नहीं है, मैं जिस दिन मर जाऊंगा मेरी बीवी को घर से बाहर निकाल देंगे। तो मतलब एटलीस्ट उस एज में जाके कुछ तो लगा उसको आदमी को कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे बाद में जो है वो बेघर ना हो जाए। तो ये हमने वहां पे किया। फिर बाद में महाराष्ट्र में कई सारे एनजीओज ने इस कैंपेन को उठाया क्योंकि जीआर ही नहीं मिल रहा था ना, तो ये जो है वो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद में हमने ग्राम पंचायत में जो 10 to 15% औरतों के लिए जो रहता है पैसा, उसमें से जॉइंट नेम प्लेट के लिए पैसे निकाले। कुछ जहां कम पड़ा वहां औरतों ने खुद डाला, जहां और भी कम पड़ा वहां पे मासूम ने डाला, और दोनों के नाम के जो है वो हमने बाहर कर दी। एक था। दूसरा, जमीन पे जो मैंने पहले सारा कहा ना, बहुत दिक्कत है। घर का फिर भी ठीक है, पर घर का जो जमीन का है ये बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरे कलीग्स ने जो किया, और आज मेरी काजल जो सहेली है उसने मुझे रिपोर्ट भी भेज दिया क्या मासूम ने किया था। तो कम से कम 13 गांव में पूरा जो है वो बेसलाइन सर्वे किया, और उसके बाद में 1100 लोगों के दस्तखत लेके ब्लॉक के लेवल पे, और इसमें मर्द थे काफी सारे, उन्होंने कहा कि नहीं, जॉइंट ओनरशिप जमीन की जरूर होनी चाहिए। और उसमें 50 मर्दों ने जमीन डायरेक्टली अपनी पत्नी के नाम पे और बेटियों के नाम पे ट्रांसफर करने का जो है वो वहां पर ही जो है वो ऐलान किया। तो इस तरह से कहना यह है कि बहुत मुश्किल है। फार्मर्स के ग्रुप्स भी, विमेन्स फार्मर्स ग्रुप्स भी बनाए, लीगल एड भी, क्योंकि पहले मैंने जैसे कहा था कि अगर वो फार्मर नहीं है, शी कैन नॉट एक्सेस एनी लोन्स दैट कम फॉर फार्मर्स। और लोन्स का कोटा रहता है हर ब्लॉक में और हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो सारे रिश्तेदारों के पास जाता है, जो ब्लॉक ऑफिशियल्स है या पॉलिटिशियंस है वो। तो वहां से निकाल के ज्यादातर एकल औरतें जो है, सिंगल औरतें जो है, तो एकल औरतों के लिए पूरा कैंपेन हमने किया था, क्योंकि एकल औरतों की तरफ देखने की जो दृष्टि होती है पूरी समाज की, ना इधर की ना उधर की, ये रह जाती है। तो इसलिए ये कैंपेन हमने किया, और ये काफी सफल कैंपेन हमारा रहा। लेकिन जमीनें कितनी ट्रांसफर हो रही है उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि आज मेरे पास में ये एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है कि इतनी जमीन पूरी तरह से ट्रांसफर हो गई। लेकिन इन द पाइपलाइन जो है वो डजन्स, हंड्रेड्स ऑफ केसेस आर इन द पाइपलाइन की, जिसमें 7/12 पे औरत का नाम हो या उसकी ओनरशिप हो। एक अंत में मैं कहूंगी कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तब हमें पता है कि मेंटेनेंस कोई देता नहीं है, पति देता नहीं है बाद में। तो हम उसी वक्त जो है फर्स्ट टाइम पे जब कॉम्पेंसेशन और ये मांगते हैं, जो मेंटेनेंस नाम भी देखिए ना कितना पेट्रियार्कल है कि आदमी मेंटेन करे औरत को, मतलब हक कुछ नहीं है बट ही विल जस्ट मेंटेन हर। वो भी 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, वो भी लड़ लड़ के लेना पड़ता है। तो ये सारा जो है हम लोग क्या करते हैं, 50% आदमी से पहले दिन लिखवा लेते हैं, फिर वो घर का हिस्सा हो या फिर जमीन का हिस्सा हो, राइट टू टिल द लैंड, हम पहले ही दिन पे लिखवा लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जनाब उसके बाद में कुछ नहीं देने वाले। तो इस तरह से हम लोग जो है वो या तो यहाँ से या तो वहां से जमीनी कानून, जो कानून हो ना हो, हम अपने काम को जो कहते हैं वी कॉल आवर वर्क एक्स्ट्रा लीगल, इट्स बियॉन्ड लीगल, मतलब वी आर सपोज टू सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर गुड लॉज, नॉट जस्ट फॉलो लॉज। और इस तरह की जो है तो संघर्ष जारी है, और भावी कहते हैं ना कि भावी इतिहास जो है वो हमारा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, थैंक यू सो मच। वैसे तो मतलब पता नहीं, अगर टाइम लिमिट ना हो और सुनते ही जाएं आप लोगों को, मेरे को अभी भी ऐसा ही लग रहा है। पर शिप्रा जी, आपने पहले वाले सवाल पे आपने कुछ उदाहरण दिए थे, क्या आपको कुछ और भी लगता है ऐसा कोई हम अपने दर्शकों को बता सके, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा मॉडल? हालांकि आपने इसके पहले मेरे को 2 बताए हैं,
जो गुजरात वाला मॉडल था आपने वो भी बताया, और आपने लैंड एसे के काम के बारे में भी बताया। कुछ और आपके जहन में आता है? हाँ, लैंड से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, बातें बंद नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ मतलब अच्छे मैं कानून और स्टेट के परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो औरतों को 3 तरीके से ज़मीन मिलती है। एक इनहेरिटेंस से मिलती है, एक होती है कि जो वो बाजार से खरीद सकती है, और दूसरा वो होती है जो गवर्नमेंट, तीसरा होता है जो गवर्नमेंट के लैंड एलोकेशन सिस्टम से मिलती है। इनहेरिटेंस का हाल तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा जो बाजार से खरीदने का बात हुई, तो ये सारी चीजें जैसे जॉइंट टाइटल्स में मिलना या फिर स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन, ये असल में 90s, लेट 90s और 2000 के आसपास बात शुरू हुई। सबसे पहले तो माने सिक्स प्लान के बाद औरतों के इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर ओनरशिप की बात हुई थी 6 5 ईयर प्लान में 90 के आसपास। लेकिन सन 2000 से के आसपास सबसे पहले ये बात करी गई। उस समय जो 5 ईयर प्लान था, 9th 5 ईयर प्लान, उसमें ये टारगेट रखा गया कि औरतों को जितने भी सरकारी जमीनें एलोकेट होती हैं वो 40% औरतों के नाम पर ही जानी चाहिए। तब सारी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी गई, जिसके बाद ये 2 प्रोविजंस उसमें सजेस्ट करे गए कि जो सरकारी जमीन एलोकेट करती हैं, जो सीलिंग से आती है या भूदान से आती है, कि कहीं से भी सरकार जहाँ जो लैंडलेस लोगों को देती है, वो जॉइंट एलोकेशन पे हो। और दूसरा ये कि स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन। तो उसके बाद देवेंद्र कह रहे थे कि 6-7 स्टेट्स ने स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन किया। सही बात है, बहुत कम स्टेट्स ने, सारी स्टेट्स ने तभी भी नहीं किया। हर किसी स्टेट में कोई यूनिफॉर्म प्रोविजन नहीं है। यूपी में कुछ होगा, झारखंड में कुछ होगा। देवेंद्र ने झारखंड का नाम लिया कि वो बहुत कम रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लाया। तो झारखंड जो था 2017 में लॉ लाया, जहां पर कि 50 लाख से कम की अगर जमीन की वैल्यू है तो वो औरत के नाम रजिस्टर हो रही है, तो केवल 1 रुपया लगता था। लेकिन 2017 में वो लॉ आया, 2020 में गवर्नमेंट बदली, 2020 में वो लॉ, वो प्रोविजन जो था वापस हो गया। और आज की तारीख में वहाँ कोई स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन नहीं है। ऐसा ही एमपी में भी आया, वो वहाँ पे प्रोविजन आया, बट देन इट वाज रिवोक्ड। यूपी में भी प्रोविजन आया, बट देन इट्स अभी रिवोक हुआ नहीं है। बट देयर इज डिस्कशन कि हाँ ये इस गवर्नमेंट में शायद वो हो सकता है बैक हो जाए। इट्स लाइक सम न्यूज़ स्टोरीज आर सेइंग लाइक दैट। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। इसी तरह जॉइंट टाइटलिंग के ऊपर है। अब जॉइंट टाइटलिंग से जैसे कि आमतौर पे हम समझेंगे कि पति पत्नी दोनों के नाम पे जमीन है और दोनों को बराबर अधिकार होगा, लेकिन है क्या, खास करके महाराष्ट्र में और यूपी में, मैं ये 2 राज्यों की तो लीगल प्रोविजन के बारे में जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है। पर कानून की भाषा क्या कहती है? कानून की भाषा कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को जमीन का आवंटन किया जाएगा और अगर वो विवाहित है तो उसकी पत्नी का नाम भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो औरत को वहां पे भी अपेंडेज की तरह ही जोड़ते हैं। ये नहीं कहते कि दोनों को, मतलब जो इंटरनलाइज्ड चीज है पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सभी जगह, वो पेट्रियार्की की लैंड होल्डर तो आदमी है, औरत का उसमें नाम जुड़ जाएगा। अब फिर इसके साथ में होता क्या है कि ये प्रोविजन आ भी गया, जैसे मनीषा ने बताया कि इनको एक जियो निकलवाने में कितना समय निकल गया। तो ये प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदल दिया, लेकिन पूरे राज्य में जो रेवेन्यू ऑफिशियल है, जो एक्चुअली में पट्टा जारी करने वाला है, क्या उसको पता है कि जॉइंट लैंड एलोकेशन करना है? तो मेरे अनुभव में ये आया यूपी में काम करते हुए कि उनको नहीं पता है। अगर उनको पता भी है तो क्या होता है कि जो पट्टा आवंटन करने वाले जो कार्ड्स है या पेपर है, जो जमीन के कागज जिसके ऊपर ये लिख कर दिया जाना है कि फला फला जमीन का नंबर जो है आपके नाम पे, उसमें कॉलम ही, स्पेस ही नहीं है कि 2 लोगों का नाम जुड़ सके। तो बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू ऑफिशियल उस पे एक ही कर देता है। लेकिन इन्हीं के बीच में काम करते करते अच्छे उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे मुझे मिर्जापुर की एक डीएम याद है काम करते हुए कि वहाँ पे मेरी टीम जो थी लैंड एलोकेशन के लिए काम कर रही थी। तो स्टेट में प्रोविजन है कि जॉइंट लैंड एलोकेशन ही होना चाहिए। 600 कुछ लैंड एलोकेशन रेवेन्यू ऑफिशियल ने करे, सारे के सारे अकेले आदमियों के नाम पे।
फिर हमारी टीम ने वहाँ पे जो डीएम थी उस समय, उनको एक राइटिंग में दिया कि ये तो स्टेट के कानून का उल्लंघन सरेआम आप ही का विभाग कर रहा है। तो नॉर्मली होता तो शायद डीएम के पास दोनों रास्ते होते हैं, वो उसको चलते भी रहने दे सकता था, लेकिन वो एक डीएम थी उस समय जिन्होंने इस बात को सीरियसली लिया। उन्होंने अपने ही लोगों के द्वारा दिए गए जो पट्टे थे उनको सबको रिजेक्ट करा, बोला नहीं इनको सबको ज्वाइन करिए। वो सारे के सारे पट्टे बाद में वापस ज्वाइंट हुए। तो इन्हीं सबके बीच में माने जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स भी हैं वो भी रोल मॉडल सेट करते हैं कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्या है जो स्टेट ने प्रोविजन बनाए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की। और इस तरह से हम मैंने इतना बड़ा डाइवर्स इंडिया है, डाइवर्स स्टेट लॉज है, और अगर हम उदाहरणों में चले जाए तो अपने ही देश में बहुत सारे अच्छे उदाहरण भी है जिनसे हम सीख सकते हैं। पर मेन बात मुख्य बात यहाँ पर आ जाती है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। जैसे कि 2005 के ये जो जिस रूलिंग को लेकर हम लोग डिस्कशन करने बैठे, ये देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हमें माने देना होता तो शायद इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य तो खाली उस तरह से रुकावटें ही पैदा करना था, तो किसी भी तरह हमें उनकी व्याख्याएं करके उसमें अड़चने ही पैदा करनी थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आके ये व्याख्या देनी पड़ी कि नहीं बराबर अधिकार है। अभी मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जो अमेंडमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग आई है, इसके बाद पूरे देश भर में जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, वो लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा ज़्यादा समानतावादी करें, ज़्यादा इक्विटेबल करें। मैं सोचती हूँ कि ये जो जजमेंट है ये उनके लिए प्रेजेंस सेट होना चाहिए इससे, कि वो सारे के सारे जजमेंट्स है, कितनी सारी औरतों की लड़ाइयाँ जो वो कोर्ट में लड़ रही हैं। कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्ट करा है कि उस तरह के केसेस जल्दी निपटाए जाए जो इस तरह से विवाद से संबंधित है। पर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी तरह के इनहेरिटेंस और लैंड ओनरशिप के जो लॉज हैं, लोग थोड़ा ज़्यादा औरतों के अधिकारों के बारे में सजग होकर सोचेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब औरतों के बराबर, लड़कियों के खास करके बराबरी के अधिकार को अप एंड लाउड होकर इतने खुले शब्दों में कहा है, तो अब ये निश्चित रूप से परिवारों की जिम्मेदारी है ये देखना कि लड़कियों को वो अधिकार देते हैं कि नहीं देते, वो लड़कियों को क्या देना चाहते हैं जिंदगी में। तो परिवारों को भी वो जिम्मेदारी के साथ दिखाने का वक्त अभी है। जी जी शिप्रा जी, अभी आपने एक बात अपनी बातों में कही, ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात करी, तो उससे संबंधित मेरा एक और छोटा सा सवाल आप ही से है कि जब आप एक मतलब एक स्ट्रॉन्गर वुमेन लैंड राइट्स के लिए बात करने के लिए जाते हैं पॉलिसी मेकर्स से, तो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स वहां से पॉलिसी मेकर्स की तरफ से मिलता है? बिल्कुल, कहीं ना हम बात कर रहे हैं ना, हाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरी पूरी हाँ जी जी जी। हाँ बिल्कुल। तो जो निश्चित रूप से जो आप बता रही थी कि हरियाणा में आपको देखने को मिला, उसी की परछाई ही यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि चाहे मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाऊँ तो कभी कभी लोग बहुत हार्श ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, बोलेंगे कि औरतें और जमीन। अरे जैसे मुझे आपसे बात करी तो मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले मिर्जापुर में मैं एक एसडीएम से मिलने गई। हम लोग मिर्जापुर में एक तहसील ऑफिस में एक सेंटर बना रहे थे ताकि औरतें आ सके और अपने लैंड इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। तो जब मैं वहां पे गई तो वहां पे जो एसडीएम का जो पहला वाक्य था, वो मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे बात करना। औरतें, बहन जी आपको पता नहीं है कि जो यहाँ की औरतें ना इस तहसील की, ये जो आपके लखनऊ में जो हजरतगंज में औरतें घूमती है ना, उनसे ज्यादा एम्पावर्ड है। आप क्या बात कर रही हैं? सो दैट्स हाउ दे ट्राई टू ट्रीट कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, इशू को ही रिजेक्ट कर देना। अभी कुछ समय पहले झारखंड में एक बहुत सीनियर लॉयर से मैं बात कर रही थी, हाई कोर्ट के बहुत ही रिनाउंड, और जब मैं उनके पास गई, ही वाज लाइक झारखंड में तो एकदम मतलब बराबर राइट है, कोई नहीं रोकता औरतों को जमीन पे हक लेने से। That's how people respond. But within these, मुझे एक मैंने यूपी में मैं एक
सीएम ऑफिस में एक बार एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, सीएम ऑफिस में लैंड मैटर्स को देखते थे। तो जब यूपी में 2016 में अमेंडमेंट होके केवल अनमैरिड डॉटर्स को राइट दिया गया था और मैरिड डॉटर्स को नहीं दिया गया, तो मैं उनके पास गई मिलने और मैंने उनसे कहा कि ये जो अमेंडमेंट है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये औरतों के लिए या लड़कियों के लिए अच्छा है या खराब है, क्योंकि जब आप मैरिड डॉटर को नहीं दे रहे हो और अनमैरिड डॉटर को दे रहे हो, तो परिवार क्या चाहेगा कि किसी भी तरह लड़की को जल्दी से जल्दी शादी की तरफ धकेलो, जिससे कि उसको वो राइट असर्ट करने का वो मौका ही निकल जाए। बिल्कुल। तो वो he was so active and so receptive to this suggestion that he was like, ये तो कभी जो मैंने इतने डिस्कशन हुए यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल उसमें सर्कल्स में, लेकिन मैंने कभी भी इस दृष्टि से तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो ही सजेस्टेड कि आप जो है एक सीएम ऑफिस के लिए सीएम को एड्रेस करते हुए एक लेटर जरूर यहाँ पे दीजिए, भले यू कंटिन्यू योर डिस्कशंस विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बट give a letter to CM office as well, so that it at least comes to discussion. So he was receptive, he showed me the way, उन्होंने दूसरे रास्ते भी बताए, मुझे 4 दूसरे लोगों से भी कनेक्ट करा कि इनसे भी मिलिए, इनसे भी मिलिए। So you get all kinds of experiences within this, but largely, yeah, all of this is situated within the larger context of patriarchy, and that's what you have to deal with all the time. Thank you, Shipra ji. Devendra, anything at the last, if you think that something very important which we should have brought to today's discussion, or any positive things you want to brought to today's discussions to conclude the session also. So yeah, over to you. So Shipra and Manisha have given extensive things on points on what we need to work on, which is on the executive and implementation side of things, and also some legislative things. What I also want to sort of pull the discussion back to is that the work of removing gender discrimination in the Hindu Succession Act itself is not done yet. So there still continue to be provisions in the Hindu Succession Act itself which discriminate against women, which treat women as less than men in one way or another. And one which immediately comes to mind, there are several, but one which is the most prominent one is on how the Hindu Succession Act treats the devolution of men and women's property. So for men, there is one single scheme of devolution which goes wife, children, mother. If neither of them are alive, then it's heirs as described in the schedule, which go in the order of father and then brothers and then relatives further away. Now, one thing that it does is that it says that relatives who are related to that person exclusively through male lines always get priority over relatives who are related through female lines. So the legal term are agnates and cognates. So agnates always get priority, which means that generally the recognition of connections through women is downgraded. That is one. Now, if we look at the devolution of women's property, it's far more complicated than it is for men. So there are two different schemes which operate. This is in section 15.1 and section 15.2. So what it says is, the section 15.1 is a general scheme of devolution. And what it says is for any Hindu woman who dies intestate, which is without creating a will, the first claim to the property is from her husband and children, and any grandchildren if the children have already deceased. The second priority after these is to the heirs of the husband. And heirs of the husband are what is there in section 8, which is his parents, then his relatives, his brothers, and so on. So after heirs of the husband come the woman's own parents, and then the heirs of her parents, and even within that it's the heirs of her father first, and then the heirs of the mother after that. Okay, so you don't see anything similar in the scheme of devolution for men. There is no mention of the woman's natal family anywhere in the scheme of devolution for men. Okay, so this is one part of it. The second part of it in section 15.2, what it says is, for any property that a woman inherits from her parents will go back to the parents' heirs.
and any property that she inherits from her husband or father-in-law will go back to the husband's heir. Now, this is assuming that she dies without having children. So if she dies childless, then this is the scheme that applies. Again, we don't see a reciprocal provision for men. So if a man inherits any property from his wife and the couple don't have any children and he dies a widower without creating a will, the property that he inherited from his wife doesn't go back to the wife's family. And it seems sort of, if you just look at this structure, then it would, one would assume ki, but I mean, if any property that the woman inherits is coming from her father, so it would go back to the parents. The big hole that it leaves, it never considers what happens to any property that she acquires on her own. What happens to anything that she has earned on her own? What happens to any property that she inherited from somebody who's not her parent? What if she got it from her brothers? All of it, the right lies with the heirs of the husband if she doesn't have any children. And the fact that the Parliament in passing this act did not consider this possibility is even acknowledged in the Law Commission's report, in the 174th report, where the Law Commission explicitly says that it was inconceivable that women would have the capacity to acquire and hold and manage their own property. And that is how, so the assumption in these two sections is that she'll either inherit the property from her father or through her husband's family, and then just to take care of any slight deviations we don't know about, we have this general scheme of devolution. Okay, now is this a new problem that we've identified? Certainly not. There has been discussion around this for a very long time. There was one prominent case in the Bombay High Court in 1983 called Sonubai Yashwant Yadav versus Bala Govind Yadav, which said that this 15(2) is fine. It doesn't discriminate against gender. It's fine by the constitution. But there is a conflicting judgment in 2012 again from the Bombay High Court in a case called Mamta Dinesh Vakil versus Bansi Vadva. It's a landmark judgment. And there the Bombay High Court explicitly says that this discrimination that we see in section 15 and 8 is purely on the basis of gender. All of the arguments that any apologist has given in trying to frame it as a preservation of families and to maintain familial connections, they are all nonsense. And that this is against Article 15(1), which is the right to equality under the Constitution. Now, the problem is it didn't make a definitive ruling. What it said is that a larger bench has to decide on this because there are other judgments which say otherwise. And that larger bench hasn't been constituted. So this court hasn't definitively ruled on whether it is against the Constitution. So that is one thing that is immediately fixable, either by the Parliament, by making an amendment, or by somebody filing a PIL in the Supreme Court to take action against it. But really the correct place for this is the legislature, because this is a mess that the legislature has created and they should be the ones fixing it. And we also talk about a potential best case amendment in one paper that we recently published at NIPFB. So if any of the audience want to go and check it out, we can maybe provide a link or something in the comments for this. The thing is that, like Shipra said, there are examples, better examples in front of us, and there always have been. So the Indian Succession Act, which is from 1925, actually has a gender neutral scheme of devolution. But even then, in the Hindu Succession Act, which came more than 20 years after this act, we have this discrimination. It's a similar thing with Goa. Goa has a uniform civil code, sort of. It's the Portuguese civil code, which they inherited. Now it's they've made passed their own version of it. Last updated in 2018. Again, it doesn't discriminate on the basis of gender. So the terminology used, for instance, is not husband, wife, son, daughter. It's spouse, children of predeceased children, and so on, siblings. So it's not like we didn't have any examples and that we didn't know better. It's actually, these were conscious decisions taken. Another revealing thing is that the Hindu Code Bills Committee, which submitted its reports on the draft of the bill, actually did not recommend any of this. This was put in later by the Parliament, the Joint Committee of the Parliament, after due consideration. So that is my really limited input, that there are legislative actions that still need to be taken. Of course, there's a lot to do on the implementation, but even in the law, we haven't really solved this problem of gender discrimination. Let's at least do that. And so, Devendra, I can add to that. So the
about once feminism in India posted about this. And the kind of reaction that people had, that, you know, how does it matter since the woman is already dead when this provision sort of kicks in? And I think what it ignores is that because women are not able to provide for their natal families after their death, actually, shapes how a woman's role is perceived in society overall, even while she is alive. So I think it's not, I think some people say that when it comes to devolution, it's not really discriminating against the women, but the family, we shouldn't worry about that much. But I think that entire mentality that is leading to such a provision is what needs to be attacked. That's absolutely correct. Yes. We Maushmi? also see this in, just if I may supplement Yeah. that, we also see this in some other provisions which are, I mean, which don't come into conflict so often, but really do betray the same mindset. Like, for instance, the one I mentioned earlier, which agnates are always favored over cognates. That is one. The other interesting one is how property flows between half siblings. So a relationship is only considered to be valid for the purposes of the Hindu Succession Act if it is through the same father. If they have the same mother, then the rules don't apply. They're not considered as siblings insofar as the Hindu Succession Act is concerned. So I mean, it's the fact that women are not equal and there's something lesser than men is sort of evident in most of the language of the act. Yeah. So thank you so much, Devendra. I think we are also coming towards the end of our discussion. It was such an insightful and enriching discussion. I don't know whether I will be able to sum up it in few lines and few words. So Aparajita, if I miss something in my summing up, please do add. And my panelists also, if I miss any important thing, please do add. And so not only for our viewers, also for me, the today's discussion was such rich and insightful. I don't know, 4-5 pages notes I have made for myself to refer back later and to understand them more. The interesting part in today's discussion was that how on one hand we are trying to make progressive laws, and then how the society also is working, you know, to pull it back, because किसी को नहीं पसंद है कि पितृसत्ता हिल जाए, तो वो बनी रहनी चाहिए। एक तरफ कानून अपनी कोशिश करते रहे, औरतों की संघर्ष जारी रहे, और दूसरी तरफ में पितृसत्ता भी जारी रहनी चाहिए। तो वो हम अलग अलग चीजें, वो जो है अदृश्य है, वो अदृश्य चीज भी अपना दम लगाए रखता है पूरा, कि कैसे हम सारी चीजों को उसका तोड़ निकाले, कि ताकि हमारे हाथ से प्रॉपर्टी ना चली जाए। जहाँ पे आज जब मनीषा जी ने कहा कि भाइयों ने कहा कि राखी राखी नहीं रहा, या मेंटेनेंस शब्द ही कितना पेट्रियार्कल है, तो मुझे कमला दी की एक बात याद आ गई। वो कहते हैं ये पति शब्द कैसा है, जहाँ पे कि ये तो खुद ही मालिकाना की बात करते हैं। मतलब हमारे पास में हस्बैंड का एक प्रॉपर हिंदी नहीं है, हम जीवन साथी नहीं बोल सकते हैं, हम पति बोलते हैं, और लखपति और करोड़पति की तरह औरत का पति मालिक की तरह लगता है। सो और जब मैं हरियाणा में जाती हूँ और मैं 18 साल के कम उम्र के बच्चों को जब सिर्फ ये बोलती हूँ, अभी आप आंख बंद करो और बताओ, एक किसान को सोचो और बताओ किसान क्या पहने हैं, तो एक 11 से लेके 18 साल के बच्चे सभी के सभी किसान पे वो एक पुरुष को ही बताते हैं। धोती पहना हुआ है, सर पे टर्बन है, तो ये सारी चीजें बताता है कि सारी चीजें कितनी डीप रूटेड है, और दोनों चीज में हमको लगे रहना पड़ेगा। इस पूरे मतलब कानून की लड़ाई की कानून में बदलाव आए और इस तरीके का प्रोग्रेसिव लॉज बने हमारे लिए, लेकिन वो लॉ जमीनी स्तर पे लोगों के हाथ में आए, क्योंकि इन सारी चीजों का रिश्ता कहीं ना कहीं वायलेंस से बहुत डर है। और एक जो आज की चर्चा में जो ये बात निकल के आई कि खास करके जब हम जमीन जायदाद की बात करते हैं, तो ये लड़ाई अपनों के ही खिलाफ है, हमको उन्हीं के साथ में लड़ना है और उन्हीं से मांगना है। तो शायद जमीन की बात जब करते हैं तो ये मुद्दा और कठिन हो जाता है,
in against any other matter of women rights. And also Shipra brought out very insightful things about like how on the how it plays on the agriculture, land holding, how state and center for the both the things, it has got a different implications at the state and at the central level. And we also talked about in today's discussion that about the is there any scenario different in the rural areas or in the urban areas. And one penny drop moment was also for me. I always used to think that ट्राइबल एरियाज as हम नॉर्मली बोलते हैं कि वहां पे तो बहुत बराबरी है. जब हम आंकड़ों की देखने की कोशिश किए, जो शिप्रा ने बात रखी, तो फिर मेरे को और मन कर रहा है कि मैं वापस जाके उस पर मैं और पढ़ूं कि उस पर क्या है, मतलब वहां पे भी गैर बराबरी चीजें किस तरीके से प्ले आउट कर रही हैं और किस तरीके से दिख रही हैं. सो इसी के साथ में और आखिर में जो देवेंद्र जी ने जो अपनी बात रखी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में अभी भी क्या क्या डिस्क्रिमिनेटरी चीजें हैं, और जो इन्होंने 15(1) और 15(2) इनको जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं वो लिखने की भी कोशिश करी अपने लिए, और मेरे को लग रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हाउ कॉम्प्लिकेटेड ये पूरी सारी चीजें. एक छोटी सी चीज जो सुनने में लगता है कि एक बराबर जैसे यार हम पैदा हुए हैं तो हर चीज तो मुझे बराबर का मिलना चाहिए, पर सुनने में ये कितना आसान लगता है, जो कि इतने कानून होने के बावजूद भी संघर्ष अभी बाकी है और शायद मंजिल अभी दूर है, पर हम पहुंचेंगे वहां जरूर. अपराजिता, अगर मेरी समाप्त में कहीं पे कोई चीज रह गया है, प्लीज आप ऐड कीजिए. No, thank you so much, Maushmi. I think you have summarized it beautifully. I would just say that people who are interested in this topic, and I think everyone should be, because this is something that concerns all our lives, all our families. So do read up more on, property rights issues, especially around how they relate to differences between men and women. एंड आई थिंक सबने बात करी, शिप्रा ने बात करी, मनीषा ने बात करी, देवेंद्र ने बात करी. आई थिंक लॉज कैन डू ओनली सो मच. जब तक हम उस कानून को समझेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा क्या हक है, और जब तक हम मांगेंगे नहीं, तो वो हमें कभी मिलेगा भी नहीं. So I think that is what we need to do and keep ourselves more informed. Thank you so much. It's 6:15. So I'm just conscious that, we are running out of time. Thank you everybody for joining this discussion. Thank you, Maushmi, for being an awesome host. Yeah, let's keep engaging with, each other and learn from each other as we do our work. Thank you so much. Thank you so much. जिंदाबाद सबको, जिंदाबाद. Thank you. Thanks. जिंदाबाद मनीषा जी. Thank you, Vindru.